आपने मैसेज कर दिया बेटा? Okay, so we are starting today's meeting with chanting Omkaram. So all of you just join your hands, close your eyes. Okay, Sairam once again, children. I hope you all are well. Yes, all are happy, healthy. Yes, ma'am. हाँ, very good. We must be happy and healthy. H square हमारे हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, है ना? Yes. Okay, children. So you people must be ready with your notebook, pen and book, right? है ना? आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक, बुक और ये सब लेके ज्वाइन करो. अपना स्टडी मटेरियल कीप इट रेडी विथ यू पीपल. अच्छा, अभी ओनली 15 स्टूडेंट्स आर देयर. लेट देम कम फास्ट. बच्चों को बोलना है ना. हाँ, Ma'am, only 40 students are there. yes. Okay. Including me, it's 15, na? Right. So, yes, you should inform Ma'am. your friends. They should join the class fast. It's 1:33 now. Then we will start. अच्छा. मैम 30 स्टूडेंट्स हो गए. हाँ, let's see. आज जन्माष्टमी मना रहे हैं क्या? आज ही मना रहे हैं क्या? मैम पहले 14 थे, अब 13 हो गए. हाँ, right. Even today we are also missing you a lot. पता है? Because every year how do we celebrate Janmashtami in the school? You people are knowing it, ना? कितना हम लोग enjoy. Yes, ma'am. यस मैम. जन्माष्टमी सेलिब्रेशन. यस, मटकी फोड़ना और ये सब कुछ करते थे ना हम लोग. यस और नो? दिव्य बेटा, Yes, ma'am. डीपी चेंज करना. हाँ, राइट. Yes, ma'am. है ना? ये डीपी आप देखो, आपके सारे फ्रेंड्स आपकी ये डीपी देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है क्या? ऐसी डीपी, है ना? हमको थोड़ा सा सोच समझ के अपनी डीपी लगानी चाहिए. बिकॉज अवर डीपी एवरीवन कैन गेट इट, है ना? सबको दिखती है, तो हमें थोड़ी अच्छी डीपी लगाना चाहिए. ओके. हाँ, ओके. जस्ट गिव मी 1 minute. आई एम setting for your attendance. I am adding your class. Okay. 6th B. एक मिनट. ओहो, ये प्रीवियस क्लास ये नहीं हुई ना, so that's why. Okay, now your names have come. अब आ गई आपकी क्लास, राइट? हाँ बेटा. Number of students are less today. I think it's because of them. Some people celebrate Rakhi also on Janmashtami, right? है ना? Ma'am. अच्छा. Ma'am, who is the monitor? I am coming to that point also. अभी बात करते हैं. मॉनिटर अनुभा. अच्छा बेटा, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो जल्दी से. As I told you at the beginning of the class, your video must be on. In between बीच में. प्रांजल, be in proper dress बेटा. Ma'am. Yes, yes, very good. ठीक है. So today we are going to discuss question answers of 5th chapter, right बेटा? आज हम 5th chapter के question answers discuss करेंगे. So are you ready with your notebook, pen and study material, whatever Yes, you ma'am. need? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो अनुभा, where Yes, is अनुभा? ma'am. हाँ, अनुभा, are you listening? Yes, ma'am. बेटा, Yes, ma'am. अपना वीडियो ऑन करो. Switch on. Yes, ma'am. Yes. Anubha, will you be the monitor beta for today's class? Yes, ma'am. हाँ, okay. तो आज हमारी मॉनिटर कौन है? अनुभा है, right? Okay बेटा. So now I am presenting my screen.
अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. ओके. Okay, today some network issue is also there. Yes. Okay. Yes, beta. Is my screen is visible? Yes, ma'am. मेरी screen. Yes, ma'am. Okay. Okay. हाँ, you can read it easily. आप पढ़ पा रहे हो उसको? Yes, ma'am. Why do we need to? हाँ, right. Okay. Why do we need to separate different components of a mixture? I think these questions we have discussed of No, NCERT, right? ये हमने किया था बेटा. What is Yes, seeding? ma'am, हमने आपने डिस्कस किया किया था. था. हाँ, बिल्कुल हमने. Ma'am, वेरी थोड़ा अटेंटिव रहो बेटा, ध्यान से. मैम इन प्रीवियस क्लास हाँ मैम मैं अपनी नानी के घर आई हूँ तो मैम यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हाँ, तो होती है. बेटा that you should solve at your partner, that you should ask to your classmates कि what was done in the class if you did not attend the class, है ना. ये आपको पूछना चाहिए. अब without Yes, ma'am. how can you say कि मैडम ये नहीं हुआ. बेटा ये हो चुका है. क्वेश्चन के आंसर्स भी आप लोगों ने दिए थे, बताए थे मुझे कई बच्चों ने आंसर्स, और हमने डिस्कस किया था. इस तरह से आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट लेके भी इसको लिख सकते हो. जिसने अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बाद में लिख लेना. ओके. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. हाँ. और स्क्रीनशॉट ऐसे लेना बेटा कि ये ऊपर का पोर्शन नहीं आए, नीचे का नहीं आए. जितना आपका क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है मेन वही आए, ताकि आपको क्लियरली वो बाद में लिखते आए. ठीक है. तो आई एम जस्ट रीडिंग टिल देन. धवल, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रीड फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. Why do we need to separate? Why do we need to separate different components of a mixture? हाँ बेटा, हो गया. कि जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उनके लिए हम एक बार इसको रीड कर देते हैं, ताकि टिल देन दे कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो एंड इट विल बी अ रिवीजन ऑफ फॉर यू आल्सो, है ना. आप लोगों के लिए एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा. राइट. ओके. धवल, रीड द आंसर. Yes, ma'am. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. To remove these harmful or unuseful components, we need to separate them. For example, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while separating tea. B. Yes. Stone pieces from wheat, rice, or pulses are picked out by hand. Yes. Other than these also you can write any examples by your own. आप अपने आप से भी लिख सकते हो. Now the second question is, Anubha, you read the second question. Yes, ma'am. Is knowing where it is used. Yes. Knowing used to separate heavier and lighter Sorry. mixture by wind or blowing air. This process is used by farmers to separate lighter particles. Lighter dust particles from heavier seeds of grain. This is winnowing. Simply this type of picture you can draw. ये इतना पूरा नहीं भी draw कर पाओ तो ये इस तरह से ये इतना जो है ये तुम लोग इतना draw कर सकते हो, right? Ma'am, Okay. we have to draw the diagram. हाँ, if you can draw it, you should draw. Okay. Pravanshika, read the third question. Pravanshika, are you there, Pravanshika? Am I audible to you? तो है क्लास में. है ना. हाँ, I have seen her. Pravanshika, read third question. अच्छा. Can I read? वो Cherry. बेटा चेरी आपको तो नोट ही करना है अभी. हाँ महक, you should read. Ma'am, can I read? Yes, ma'am. Mahak should read first. Yes, ma'am. Ma'am. How will
you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? Husk or dirt particles can be separated by winnowing. Being lighter, they will fly They will away fly from away from pulses. pulses. Yes. है ना, हस्क को कैसे रिमूव करते हैं? हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. Being lighter, they will है, ये will है, they will fly away from pulses, right? Okay, Harish, sorry, what's the Mahesh? Mahesh, कौन? मैं बेटा कैन आई नहीं, नाम बोल के बोला करो, because when I present the screen I am unable to see you. मैम मनस. हाँ वेदांश. Okay, first Vedansh will read, after Vedansh Manasva will read. Yes, Vedansh. Read fourth question. What is sieving? Where can answer? Where can it be used? Read the answer. वेदांश की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. मनस्वी यू रीड. मनस्वी यू रीड बेटा. Yes, ma'am. What is sieving? Where can I be used? Sieving is a process by which fine particles and separated from bigger particles by using a sludge. It is used in store, mill, or at Construction sites. construction sites, in flour mill, inputted Impurity. like हाँ. impurity like husks and stones are removed from what pebbles and stones are removed from sand by sieving. Sieving, yes. है ना, हमने ये देखा हुआ है घरों में भी और व्हीट फ्लोर मिल में भी कि सीविंग इज यूज्ड देयर. और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी बेटा यू मस्ट हैव seen that mixture of cement, concrete and all the things. तो पहले क्या करते हैं, इसको सीविंग के थ्रू उसको सेपरेट भी करते हैं ना, बड़े छोटे पार्टिकल्स जो भी हैं, पेबल्स और स्टोन्स जो उसमें आ जाते हैं तो उसको हटा लेते हैं. जो सैंड होती है ना उसको सीव करते हैं ताकि प्रॉपर सैंड मिल जाए, क्योंकि सैंड के अंदर कई सारे पेबल्स एंड स्टोन्स होते हैं which is to be removed. So this can be the example of sieving, right? And this type of picture you can draw it easily. Yes. Now next question. Pranav, you read fifth question. How will you separate sand and water from their mixture? Read the answer also better. We will separate sand and water by sedimentation and discrimination. Sedimentation. Wait. बोलो मेरे साथ. Sedimentation. फिर आराम से बोलो. Sedimentation. हाँ शाबाश. And decantation. Decantation. Sedimentation and decantation method. Okay, आगे पढ़ो. First, we leave this mixture for some time. After some time, the sand which is heavier is settled down at the bottom. Or at the bottom, yes. After that we we will misprint है यहाँ पे. We will pour. You should write will. We will pour water into another container and the mixture will be separated. Very good. Yes, in this way we can separate water and sand from the mixture. Okay. Next question. And can I? Who? Tanmay? Yes, Tanmay. You should read sixth question. Yes, ma'am. 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Answer. Sugar can be separated from wheat flour by sieving. Due to difference in the size of particles, sugar will stay on sieve and wheat flour will pass through it. Yes. बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, जो लिखना है जिन्हें, और जिन्हें नहीं लिखना है वो भी ले लेना ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सको. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, बट फॉर लैंग्वेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन you can go through it, right? Yes, it was 6th question. Now let's see the 7th question. Who will read 7th question? मैम प्रवंशिका. Okay, प्रवंशिका, read it बेटा. आपका नेटवर्क चला गया था?
Yes, ma'am. Okay, read it, beta. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? We will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of filtration. A Yes. filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Hmm. Figure 5.12 shows the steps involved in using a filter paper. Ah. A filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel. Yes. The mixer is then poured on the filter paper. Hmm. Solid particles in the mixer do not pass through it and remain on the filter. And remain on. Yes. है ना बेटा, muddy water को कैसे separate करते हैं? Through filter paper we can do it. Filter paper it's like in the shape of circle, तो we make cone with it. है ना, सर्कल के शेप से पहले हम उसको कोन जैसा बनाते हैं, फनल में फिट करते हैं, एंड देन थ्रू फिल्टर पेपर क्या होता है, जो मड होता है, जो भी इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर ही रह जाती है और वाटर नीचे आ जाता है, राइट? दिस इज द filtration method. Okay, now this fill in the blanks also we have discussed. Anyone should read. Ma'am, I read. अपने नाम के साथ बोला करो. मैम आय प्रवंशिका ऐसे. हाँ, धवल The mat. नहीं, नाम बोलो बेटा. दिव्य. मैं भी बोलूं. दिव्य. यस दिव्य. Devya. यस बेटा, बोलो. Fill in the blank. Fill in the blanks. A. The method of separation sheets for paddy Separating from its paddy from seeds its for paddy from its stalks is Stacks. called. is called. क्या Is बोलते हैं? called हाँ, क्या बोलते हैं इस मेथड को? Threshing. Yes, threshing. Very good. Threshing. Who answered? हाँ, शाबाश. Very good. Okay, second one. Second, who will read? Second part कौन read करेगा, जल्दी बताओ. अच्छा, धवल you read. Am Yes, I ma'am. audible? हाँ, read the B part. When milk cooled. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This Yes. process of separating cream from milk is an example of किसका एग्जाम्पल है ये? Filtration. Filtration. Yes. filtration. Filtration. Next, salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Yes. Evaporation. Yes. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, here we have used two methods, sedimentation and Sedimentation and decantation. yes, sedimentation and decantation. Decantation. Tanmay, bolo. Tanmay, now you read true and false. Yes, ma'am. A mixture of milk and water can be separated by filtration. False. Beta, a mixture of milk and water can be separated by filtration. Can you separate it? False. आज करके देखना. आज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना. ज्यादा मिल्क खराब करोगे तो मम्मी डांट लगाएगी अच्छे से. थोड़ा सा 2-3 चम्मच मिल्क और 2-3 चम्मच ही वाटर लेके देखना, मिलाना अच्छे से और उसको फिल्टर करके देखना. कैन यू सेपरेट वाटर एंड मिल्क? आज करके देखना, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, मैम लेकिन false है. हाँ फॉल्स है. यस. हाँ, मैम जो दूध वाले mixture- होते हैं, वो भी मिला देते हैं पानी और दूध. हाँ, दूध वाले भी मिला देते हैं. सही बात है, तभी तो हम नहीं कर पाते ना उसको. और इसीलिए जब दूध को गर्म करते हैं तो उसमें जितना वाटर होता है वो सब इवोपरेट होके निकल जाता है. Okay, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Mixture of powdered salt, ये ध्यान दो, powdered salt. हाँ, दोनों ही क्योंकि powdered form में, तो we cannot separate by winnowing. So it's false. Yes, C. C वाला कौन पढ़ेगा?
मैम हाँ प्रवंशिका, ओके बेटा, रीड इट. separation of sugar from tea can be done with filtration. हाँ बताओ. फिल्ट्रेशन. हाँ फॉल्स है ना. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन. नो, शुगर तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, हम फिल्टर करके उसको नहीं निकाल सकते हैं. फिल्टर करके क्या निकालते हैं टी में से? टी में से यस, टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, शुगर को नहीं करते. अगर शुगर सेपरेट हो जाएगी तो चाय फीकी लगेगी, मजा नहीं आएगा, राइट? और हम कर भी नहीं सकते उसको. Yes, the last one, grain and husk can be separated with the process of decantation. Grain and husk, false, है ना? ये भी false है. कौन सी मेथड से होता है फिर? Grain and husk, by which method it can be separated? Hand picking. No, हाँ hand picking, but हाँ winnowing, yes, winnowing is the correct answer. hand picking है, लेकिन hand picking ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हस्क है तो hand picking can be done. लेकिन सबसे पहले जब वो हस्क से सेपरेट नहीं होता है ग्रेन, तो एट दैट टाइम उसको वो स्टेक्स को पीट के और फिर विनोइंग के थ्रू करते हैं ना हम, विनोइंग के थ्रू. ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन. Who will read? Ma'am, can I? Tanmay. Ma'am, I Tanmay. Tanmay, read it. Lemonade is prepared by Prepared. lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? हाँ, अब आज तुम लोग एक करके देखना खुद से. ट्राई टू प्रिपेयर लेमोनेड. लेमोनेड यू आर नोइंग मीन्स लेमन जूस जो हम बोलते हैं इन जनरल. तो क्या करोगे? नींबू पानी, है ना, तो शिकंजी जिसको बोलते हैं, इस तरह से. तो क्या करोगे? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें कुछ लेमन जूस लेना और शुगर ऐड पहले करके देखना. तब देखना कि शुगर कितने टाइम में घुल रही है, और दूसरी बार क्या करना? लेमन जूस, वाटर, आइस डाल देना, उसके बाद शुगर मिक्स करना और फिर देखना कि शुगर कितनी देर में घुल रही है. दोनों केस में तुम थोड़े थोड़े इसमें करके देखना, ठीक है? पहले शुगर डिसॉल्व कर लोगे, उसके बाद आइस ऐड करोगे, और दूसरे केस में शुगर और ये डाल दोगे आइस, और उसके बाद शुगर को डिसॉल्व करोगे. पहले आइस डाल दोगे फिर शुगर डिसॉल्व करोगे. तो देखना दोनों में से कौन से केस में शुगर जल्दी डिसॉल्व होती है. यू शुड नोट द टाइम आल्सो, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ इट. और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन अवर प्रीवियस क्लास. सो यू हैव सीन की जिसमें जब हमने आइस बाद में डाला था उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हुई थी. तो आइस डालने से किसी भी इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है. तो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व. समझ में आया? जब हमने आइस डिसॉल्व करने के आइस ऐड करने के पहले शुगर डाली थी तो शुगर जल्दी डिसॉल्व हुई थी, लेकिन वही आइस ऐड करने के बाद जब शुगर डाली तो वो देर से मिक्स हुई, क्योंकि उसका उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया था? तब कम हो गया था, इसलिए शुगर देर से डिसॉल्व हुई. तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ से एक मेन कॉन्सेप्ट आया, इस पे ध्यान दो. व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ मिक्सचर. ये ध्यान रखना. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना, तुमने देखा होगा कि घरों में भी जब गर्म दूध में शक्कर जल्दी घुल जाती है ठंडे दूध की बजाय, है ना? तो वैसे ही लेमोनेड में भी क्या होगा? अगर हम पहले से आइस ऐड कर देंगे तो शुगर डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, और अगर हम बाद में आइस ऐड करते हैं तो शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हैव यू गॉट? Yes, ma'am. तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है बेटा सॉल्यूट किसी भी सब्सटेंस के डिसॉल्व होने में. जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ज्यादा सब्सटेंस और जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है. अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें से जो अच्छा क्वेश्चन होगा सिर्फ मैं वही तुम्हें लिखने को कहूंगी, बाकी हम सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे, राइट? व्हाट इज स्ट्रेनर? स्ट्रेनर यू आर नोइंग, इट्स अ काइंड ऑफ sieve which is used to separate a liquid from solid, है ना? टी से टी लीव्स को करते हैं तो टी इज लिक्विड और टी लीव्स कैसी होती है? सॉलिड. तो वी यूज दिस स्ट्रेनर to separate liquid from solid. Next, name the method used to separate cream from curd that you are knowing. Centrifugation. इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे क्या होता है? सेपरेट होता है. ये लिख लो ये वाला क्वेश्चन.
ये क्योंकि जनरल मेथड से थोड़ा सा अलग है, तुम्हारी बुक में हालांकि दिया हुआ है, बट यू शुड राइट इट. राइट दिस क्वेश्चन. नेम द मेथड यूज्ड. Name the method used to separate cream from curd. To separate cream from curd. Churning भी आ जाता है उसमें. churning के थ्रू ये centrifugation होता है ना. So you should write centrifugation. तुम्हारी बुक में इस चीज को पढ़ना अच्छे से. churning होती है, churning में centrifugation and then वो जो है क्रीम सेपरेट हो जाता है. बटर होता है ना अलग, वही centrifugation. Okay, how will you separate mango from a mixture of mango and apple? It's so simple, by hand picking. You are given a mixture of salt and sand. Can you separate them by hand picking? Obviously no. You are knowing it. Name the method used to separate the pieces of stone from grain. Hand picking. Okay. Pravanshika, read the sixth one. Yes, ma'am. How can you separate green from stalk? How will you separate? So by threshing. By threshing. Right. Read the next one. Mahesh. Yes, ma'am. What types of material can be separated by using hand picking? Answer. The materials having different size and color can be separated by hand picking. हैंड पिकिंग. अगर सेम साइज के होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है. जिनमें डिफरेंट साइज के मटेरियल है और अलग कलर भी है उनका, तो वी कैन लिखना है. नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये क्वेश्चन हमने नहीं भी लिखे तो भी तुमको जनरल इस पे बेस पे तुम आंसर दे सकते हो. बेटा एक बात और बिल्कुल ध्यान से सुनो. जो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं. आपसे हम पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं और तुम अपने कॉमन सेंस के बेस पे भी इनका आंसर दे सकते हो. तो इसलिए मैं उनको सिर्फ रीड करवा के एक बार डिस्कस करके छोड़ रही हूँ, है ना. इज इट क्लियर टू यू? ये बहुत कॉमन चीजें. हाँ, और ऑलरेडी हम क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स. हाँ, so no need to write it separately. Already you have studied it, we have discussed it, and in main question answer these were some parts of the question, so you need not write it separately. अब आराम से बस हमको इसको हम आंसर देख सकते हैं. just at once we are only discussing it. Name the other method used to separate solid materials in different size. different size के materials को हम किसके थ्रू भी separate कर सकते हैं? by Sieving. by सीविंग. लेकिन सीविंग में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके होल्स कैसे होते हैं, है ना. अगर उसके होल्स बड़े हैं तो पता चला दोनों ही टाइप के मटेरियल एक ही साइज के हैं तो भी दिक्कत होगी, और वो सीव से दोनों ही नीचे आ गए तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. तो ये तुमने सीव्स भी अलग अलग होल्स के साथ में देखी होगी. जैसे तुमने देखा होगा कि जो व्हीट को या जो ग्रेन को हम सीविंग करते हैं उसकी जो सीव होती है उसमें होल्स बड़े बड़े होते हैं. सिंपल अगर बोलूं तो गेहूं छानने की छन्नी जिसको बोला जाता है, तो तुमने देखा होगा अपने घरों में भी अगर, तो उसमें जो होल्स होते हैं वो बड़े होते हैं. वही जो व्हीट फ्लोर मतलब आटे को छानने की छन्नी जो होती है वो अलग होती है. आप लोगों ने देखा है ऐसा अपने घर में? Yes, ma'am. हैव यू सीन? है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, गेहूं से जब हमको हस्क या कोई डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करना है तो गेहूं को जब छानते हैं हम, जब सीविंग करते हैं तब उसकी सीव जो होती है दैट इज डिफरेंट. एंड टू सीव द व्हीट फ्लोर द सीव इज डिफरेंट. दोनों अलग अलग साइज में होती है. उसकी नेट जो होती है उसका होल्स का साइज अलग अलग होता है. राइट. Name the process used to separate heavier and lighter component of a mixture. Heavier और lighter तो किसके थ्रू हो जाएंगे बेटा? विनोइंग के थ्रू. हेवियर, हाँ, जो लाइटर है वो विंड के थ्रू उड़ जाएगा और जो हेवियर है वो नीचे जमा हो जाएगा. ओके. Can the above stated method be used? Means winnowing be used if both the components have same weight. अगर दोनों ही सेम वेट के हो तो तुम विनोइंग को यूज कर सकते हो क्या? जैसे हमने सॉल्ट और उसका देखा नहीं कर सकते. राइट. नो मैम. Evaporation you are knowing. The process of conversion of water into water vapor is called evaporation. Name the method by which we get salt from ocean water. तो क्या है वो मेथड का नाम? Evaporation. Evaporation. Yes.
डिफाइन कंडेंसेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? तो ये चाहो तो लिख लो, डिफाइन कंडेंसेशन. 13th क्वेश्चन, डिफाइन कंडेंसेशन. Write it. Define condensation. The process of conversion of water. The process of conversion of water vapor. Conversion of water vapor into liquid form. Water vapor into liquid form is called condensation. Is called condensation. Have you written it? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Now write. कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं ना? हाँ बिल्कुल. पहले वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट होने के बाद वो कंडेंस्ड होता है और कंडेंस्ड होने के बाद में ही फिर वो वापस से क्या हो जाता है, वापस अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. देखो वाटर वेपर वेपराइजेशन के थ्रू वाटर वेपर बनती है, इवोपरेशन के थ्रू, है ना. और वो वाटर वेपर फिर ठंडी होती है, कूल होती है और फिर वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द क्लाउड्स आर, है ना, द क्लाउड्स कैन बी मेड. इसी के थ्रू क्लाउड्स बनते हैं. राइट. ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. इवोपरेशन और कंडेंसेशन बेटा दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट मेथड है. इवोपरेशन में क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है, मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है. ध्यान दो, इवोपरेशन में वाटर कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में. और वो वाटर वेपर में मतलब कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में. और जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, मतलब गैसियस फॉर्म में होता है, उससे वापस लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो होता है कंडेंसेशन. सो दैट्स व्हाई इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट मेथड है. समझ में आया? एक में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और एक में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है. एक बार वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और दूसरे में वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है. सो दीज आर इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. ये ध्यान रखना. Okay, write it. Next question. What is mixture? लिखो. When two or more than two substances, when two or more than two substances are mixed together in any ratio, then it is called a mixture. Then it is called a mixture. बाकी ये तो लिखने की जरूरत नहीं. You are already knowing different methods of separation. तो these many methods are there. You can write any, जितनी पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग. अब hand picking भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है. What do you mean by thrashing? That also we have discussed. Write 3 methods of separation. So any 3 you can. How will you separate oil and water from their mixture? Yes, this is a good question. और इसमें आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है. This figure is given in your book also, isn't it? इस टाइप का आपकी बुक में है? अच्छा ठीक है. तो अभी आप क्या करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अभी पहले ये फिगर इस तरह से ड्रॉ करना है. इसमें क्या होता है बेटा, सिंपली वी टेक अ फनल. सेपरेटिंग फनल होती है इस तरह से, ये इसका शेप होता है सेपरेटिंग फनल. यहाँ पे इसमें एक कॉर्क लगा होता है ना, जहाँ से हम इसको अलाउ करते हैं तो ड्रॉपलेट्स नीचे आती है, और उसको हमने जब बंद कर दिया तो ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे नहीं आती है. सो हियर इन दिस सेपरेटिंग फनल वी पुट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर टुगेदर. ये देखो, यू कैन सी. और तुमने पढ़ा है कि ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है तो ऊपर आ जाता है और वाटर जो है वो नीचे रह जाता है. तो टेल मी, ऑयल एंड वाटर विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज? हमने डिस्कस किया है ऑयल और वाटर, जिसमें 2 लेयर सेपरेट दिखती है. मिसिबल और इमिसिबल. Am I audible, children? Yes, ma'am. किस टाइप का सॉल्यूशन है, जल्दी बोलो. Yes, ma'am. इमिसिबल. Yes, ma'am. Visible. No. Visible. मिसिबल वाटर. हाँ, इमिसिबल है ये.
ऑयल और वाटर इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब ये मिक्स नहीं होते, इनमें अगर लेयर oil- सेपरेट दिखती है। मैम वाटर में ऑयल डालेंगे तो ऑयल ऊपर रहेगा। हाँ, ऑयल ऊपर रह जाएगा और फिर क्या होता है इस प्रोसेस में, देखो ये ऑयल पहले तो ऊपर रह जाता है, फिर इसमें यहाँ से इसका ये जो कर्सर पे ध्यान देना, कर्सर इज विजिबल टू यू, दिख रहा है सबको कर्सर? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो यहाँ पर क्या है, इसमें एक कॉर्क लगा होता है, एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा तुम सिंपली समझ सकते हो। तो यहाँ से जब हम इसको अलाउ करते हैं, ये इसको ओपन कर देते हैं, ये कॉर्क को हटा देते हैं, तो क्या होता है बेटा, जितना वाटर है वो पूरा नीचे आ जाता है, नीचे एक बीकर लगा देते हैं इसमें और उसमें वाटर कलेक्ट कर देते हैं, और इसको कब तक इसको ओपन रखते हैं इस कॉर्क को, जब तक सारा पानी ना आ जाए। जैसे ही यहाँ पे ऑयल आने लग जाता है वैसे ही हम इसे बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो ऑयल ऊपर ही रह जाता है और वाटर नीचे आ जाता है, समझे? इन दिस वे वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पहले ये क्वेश्चन और आंसर का ले लो और फिर एक इस पिक्चर का ले लो जल्दी से। ये क्वेश्चन का ले लो पहले, क्वेश्चन आंसर का। हाउ विल यू सेपरेट ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सो ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर विल फ्लोट on it. Two distinct layers are formed and slowly oil is allowed to flow into another container and is separated from water. Separating funnel can also be used to separate these two. अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये एक सेपरेटिंग फनल इस तरह से भी कर सकते हो, और सिंपली तुम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन वाली मेथड से भी इसको सेपरेट कर सकते हो। ये फिगर ड्रॉ कर लिया, मतलब इसको ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. हाँ, आंसर, हाँ, क्वेश्चन आंसर का भी ले लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ओके। हाँ, आज के लिए अभी इतना ही, अभी बचे हुए और जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई एम कमिंग बैक टू यू। यस चिल्ड्रन, आई होप यू हैव रिटन। यस बेटा, ये अपनी पर्सनल चैटिंग बिल्कुल भी इसमें नहीं किया करो, बिकॉज योर चैटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और मैंने तुम लोग की चैटिंग एक बार पढ़ी भी थी बाद में। तुम लोगों ने जब मीटिंग छोड़ दी ना, उसके बाद मैंने तुम्हारी पूरी चैटिंग पढ़ी थी कि क्या क्या तुम लोग बातें कर रहे थे। तो यू शुड नॉट यूज दिस क्लास फॉर योर पर्सनल चैटिंग। ये बिल्कुल ध्यान रहे ये बच्चों को। हाँ बेटा। मैम मनस्वा ना हमेशा टाइम बताते रहता है कि टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। अभी 3 मिनट। अगली बार बिल्कुल नहीं इस तरह से आप करोगे। टाइम हमको भी पता है कितने टाइम तक क्लास चलती है, और बेटा टाइम बिल्कुल नहीं भेजना है मुझे। देखो ये अभी चैट बॉक्स में मुझे सब दिख रहा है, किस किस ने। मानव ने लिखा है, मनस्व ने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लिया। धवल ने लिखा है यस मैम, मानव लिख रहा है मैम, सब लोग टाइम भेजते हैं। ये सबके चैट यहाँ पे है। वो मानव वो मुझे बोला कि पूरे स्क्रीनशॉट लेके प्रिंसिपल सर को भेजना है। किसने बोला प्रिंसिपल सर को भेजना है? मानव। मानव का है, जल्दी बताओ। वेयर इज मानव? मानव, इज ही देयर इन द मीटिंग? जब मैम पढ़ना स्टॉप करेंगे उसके बाद मैं मैम से कहूंगा कि कौन कौन टाइम बता रहा है। ओके, ये जल्दी से बोलो। मानव कहाँ है? मानव मैम सागर सर ने कहा था एक दिन मैम 3 दिन पहले मैम सारे लोग मैम मतलब कुछ मैम कोई की मैम मतलब सारे लोग मैसेज कर रहे तो मेरे पास सागर सर का फोन आया तो उन्होंने बोला था बेटा तुम है ना बच्चों से कह देना जो भी मतलब कहते हैं मतलब मैसेज ऐसे फालतू मैसेज करेगा तो मुझे बताना। बिल्कुल नहीं, सर ने हाँ तो हम भेज देंगे। हाँ, ये बिल्कुल पर्सनल चैटिंग अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली मैं भी बोल रही हूँ। इट विल नॉट वर्क एट ऑल। अपनी पर्सनल चैटिंग पर्सनल में पे करो। क्योंकि मैम सागर सर ने मना किया था। बिल्कुल, ड्यूरिंग द क्लास यू आर नॉट अलाउड एट ऑल फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इज इट क्लियर टू यू? और मैं अटेंडेंस बिल्कुल लास्ट में लेती हूँ। विदाउट परमिशन यू शुड नॉट लीव द क्लास ऑल्सो। हाँ बोलो बेटा दिव्य। क्लास में तो मैम हिंदी की क्लास में जिसने चैट करी थी ना उसके 99+ चैट आ रहे थे। बेटा अगली बार से वो नाम ना, ये मैं तुम्हारे सारे चैट पढ़ती हूँ, अगली बार से ना मैं वो नाम लिख के प्रिंसिपल सर को दे दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ही लिख कर दे दूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी डायरेक्ट। मानो अब बिल्कुल कोई मैसेज मैं बिल्कुल ये चैट लिखे हुए उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पेरेंट को व्हाट्सएप करके बात करूंगी।
क्लास सागर सर ने हाँ ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना बिल्कुल भी फालतू काम क्लास में करना नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मैं यही कह रहा था कि मतलब सागर सर ने कहा था कि बच्चों को समझा देना कि हाँ। मैम ऐसे पर्सनल चीजें हाँ, ना करे, बिल्कुल। वरना हाँ। प्रिंसिपल सर के पास पहुंच जाएगी ये बहुत बात। से लोग बिल्कुल बिल्कुल हम प्रिंसिपल सर को बता देंगे और आपके पेरेंट्स को भी बता देंगे। बिल्कुल फालतू काम नहीं चाहिए, क्लास के समय में पढ़ाई करो। फोन करके और हम बताया था। बातें भी करते हैं, सुनो हम बातें भी करते हैं आपस में, ऐसा नहीं है, बट जो हमारे से रिलेटेड है, जो हमारे काम की है, जो अच्छी है, हम वही बातें करेंगे। फालतू बातें करने के लिए बिल्कुल भी क्लास का टाइम नहीं है। क्लास के टाइमिंग के इस चैट में आप बिल्कुल इस मीटिंग में फालतू चैट नहीं करेंगे। आज मैंने प्यार से समझाया है, अगली बार जो ऐसा करेगा मैं इस चैट का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंसिपल सर को भी बताऊंगी, साथ ही में आपके पेरेंट को भी कॉल करके बात करूंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल आगे से। No personal chat, even no, nothing should be there related to time. We are knowing what time is there for your class. सबकी स्क्रीन पे टाइम आता है और 1-2 मिनट ज्यादा पढ़ने से बिल्कुल हम दुबले नहीं हो जाएंगे, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, हम लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, कितना आप लोगों के लिए हम मैटर ढूंढते हैं, तैयारी करवाते हैं, कहीं किसी बुक से पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई अच्छा सा वीडियो ढूंढ रहे हैं, कहीं क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। तो ये सब मेहनत आपकी पढ़ाई के लिए है, आपकी लर्निंग के लिए। आप अगर ऐसा कुछ काम करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आज ठीक है, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, now you can leave class. Sairam ma'am. Saira ma'am. Yes, Sairam. And enjoy Janmashtami.